चला पंचांनी जायचे लक्ष्मण साबळे आणि सुभाष कोरडे. दोन्ही संघांना 2-2 वेळ देण्यात येतील. पंचांशी कुठल्याही प्रकारचा वाद घालायचा नाहीये. दोन्ही दक्ष असे पंच आहे. रतन बांगरे स्टेजवर यायचे. रतन बांगरे. This is a very big and a player match between Goti and Tambal Ma. Goti won the toss and the field pass. For the spell match, we are looking on this ground in this Chashak, which is called as the Mahanayak 2022. पंच 2 मिनिटं सामना थांबवायचा आहे. पंच युट्यूबला थोडा प्रॉब्लेम आला. 2 मिनिटं सामना थांबवायचा आहे.
सामना सुरू करायचा आहे. थांब. So some cruxes was came in the middle in a time. Technological cruxes was completely repair now. This ball and so batsman hit the ball in the air, and the first wicket was fallen, but some type of fielder there by fielder, and wicket survive. No any damage done on the first ball of the Andy. Just that opening the account riskably and score up at now. We are look on the scoreboard. One of the Tambarmar. That opening the account who is in on non-striking length, and Barco will be taking the strike of Andy's next ball. This is the first spell throwing by Andy. Previous ball was very dangerous placed by Andy, but no damage done. This ball went to Barco. Barco hit the ball in the air. The ball will be cross for the 6th run, and this is the first six of the inning. हॅलो हॅलो शहापूर पोलीस स्टेशनचे आमचे मित्र सागर दगडे आत्ताच त्यांची API म्हणून पोस्ट झालेली आहे नाशिक येथे. त्यांचे हे आगमन त्यांनी मंचावर येऊन बसायचे. सागर दगडे. So in the previous ball, Barco opening his account by 6 run, and the score now we can looking on the scoreboard of Tambarmar 7 runs. First ball is in progress by Andy. And he taking the strike into Barco. Barco couldn't control himself, and no any connection between bat and ball. Meanwhile, they threw the single, and the score moves up at now 8 runs without losing any wicket. The match is progressing in this moment. Tambarmar versus Goti. These two teams are so obvious teams. There are plenty of times come approach of in आमच्या कमिटीला ज्यांनी टी-शर्ट स्पॉन्सर केलेत असे आमचे लाडके मित्र क्रांतिभाई सोनवणे यांचं आमच्या कमिटीतर्फे सहर्ष स्वागत. त्यांनी स्टेजवर येऊन विराजमान व्हायचे. चौकार. The previous ball was so short length, and the ball driven towards the extra cover reach and 4 runs. This is a first spell is in progress by Andy, and the score moves up at now 12 runs without losing any wicket. Dadu and Barco pair is in the crease. Andy into Dadu, and there was an opportunity, but no any damage done, and ball prevented by wicket keeper. Meanwhile, batsman threw for a single, and score moves up at now with the help of a previous 1 run, 13 runs without losing any wicket. 1 ball to go of this over. On the scoreboard, 13 runs without losing any wicket, and the pair of the Dadu and Barco are endeavor for increasing the scorecard of Tambarmar. Andy
into Barco. Barco drain the balls. Fine leg, square leg region for 4 runs. There was a पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर चांबरमाळची धावसंख्या बिना बाद 17 रन. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर चांबरमाळ बिनबाद 17 धावा. Next bowler, we are look on the crease in the shape of Tausif will be starting the fresh over from pavilion. The spell will be second. Now they are tight with the field. The second spell will be starting and on. And Tausif into Dadu. Dadu wish driven towards a fine leg region, but no any connection between bat and ball. And ball went in the glove of wicket keeper. Sense of any run, sense of any risk. Score remains still 17 runs. Tausif's first ball was so excellent. The ball pitched on the good length spot, but no any addition in the total of Tambarma. Tambarma remains still 17 runs. Tausif into Dadu. Dadu drains the ball towards the lock up region for 4 runs. दोन चेंडू 23 धावा. षटकातील उर्वरित 4 चेंडूचा खेळ शिल्लक. निश्चितच सुंदर असा षटकार येतो. दादू यांच्या माध्यमातून सुंदर अशी फलंदाजी करताना आपल्या संघासाठी दादू तर पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गावर सज्ज होत आहे. तोसिफ नमवंत असे इगतपुरी तालुक्यातील गोलंदाज तोसिफ यांचा पुढील चेंडू पुन्हा एकदा मारा करताय दादू. षटकातील पुढील चेंडू आता मात्र सुंदर चेंडू येतो तोसिफ यांच्या माध्यमातून. निश्चितच बादच्या स्वरूपात 1 धाव घेण्यात यश मिळते दादू यांना. धावसंख्या झाली 24. 3 चेंडू 24 धावा. षटकातील उर्वरित 3 चेंडूचा खेळ शिल्लक. आता मात्र स्ट्राईकला बघू शकतो आपण सलामीच्या फलंदाज बारकू यांना. अजूनही षटकातील 3 चेंडूचा खेळ शिल्लक. मारा करता बारकू. डावखुऱ्या हाताचे फलंदाज बारकू. तर तोसिफ यांचा पुढील चेंडू मारा करता बारकू. आता मात्र सुंदर असा चेंडू तोसिफ यांच्या माध्यमातून. त्या दरम्यान 1 धाव घेण्यात यश मिळते. धावसंख्या झाली 25. अजूनही षटकातील उर्वरित 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक. आता मात्र स्ट्राईकला बघू शकतो आपण आक्रमक स्वरूपाचे असे फलंदाज दादू. आतापर्यंत सुंदर असे फलंदाजीचे प्रदर्शन या ग्राउंड मध्ये या मॅच मध्ये दादू यांच्या मार्फत आपल्या संघासाठी निश्चितच झाला आहे. पुन्हा एकदा षटकातील पुढील चेंडू घेऊन येत आहे तोसिफ.
त्यांचा पुढील चेंडू आता मात्र पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू, तितका सुंदर असा फटका, सुंदर असे क्षेत्ररक्षण त्या दरम्यान एक धावगत प्लस दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, दुसरी धाव पूर्ण, धावसंख्या झाली ती 27. अजूनही षटकातील उर्वरित एक चेंडूचा खेळ शिल्लक. मारा करताय दादू. आता वैयक्तिक 7 चेंडूमध्ये 14 धावा खेळताय दादू. पेशी त्यांचा या दरम्यान पुढील चेंडू आता मात्र पुन्हा एकदा सुंदर असा फटका, तसा सुंदर असे क्षेत्ररक्षण, एक धाव गणती, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, दुसरी धाव पूर्ण, षटक संपतय. षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती 29. दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर तांबडमाळ या संघाची धावसंख्या झाली 29. आतापर्यंत सुंदर असं फलंदाजी करताय तांबडमाळ या संघाचे दोन्ही सलामीचे फलंदाज. रोमांचक असा सेमीफायनलचा हा दुसरा सामना. यासारखे घोटी वर्सेस तांबडमाळ दोन्ही संघ आतापर्यंत सुंदर असा खेळ करून या सेमीफायनल च्या सामन्यापर्यंत पोहोचले आहे. निश्चितच बिग फाईट, बिग मॅच आपल्याला बघायला मिळेल या दोन्ही संघांकडून. दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर 29 धावा तांबडमाळ. नए गेंदबाज अब किस गेंदबाज के पास गेंदबाजी दी जाती है. समय 14.5 के तहत से ये रन रेट चलता हुआ तांबड़माल टीम का बढ़िया शुरुआत दिलाई है आरंभिक बल्लेबाजों द्वारा दादू और बारकू इनके माध्यम से. और बारकू खेल गए अपने निजी 12 के स्कोर पर और तो दादू समय खेल रहे हैं 16 के अपने निजी स्कोर पर. स्कोर कार्ड इस समय 29 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर. तीसरा स्पेल डालने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर गणपत स्टार्ट करेंगे. यहाँ पर तीसरा स्पेल धीरे धीरे स्टार्ट करने के साथ राइट आउट विकेट. गेंद को मोड़ना चाहता फैनले की तरफ लेकिन गेंद को फीड किया जा रहा है. यहाँ पर स्क्वायर लेग से पहले गेंद को फीड किया गया और इस दौरान रनों की जो रफ्तार थी जो बल्लेबाजों ने पूरी की है एक रन से संतुष्ट रहे और इस एक रन के साथ स्कोर कार्ड तांबड़माल टीम का बढ़ता हुआ 30 रन. समय मुकाबला जारी है गोटी वर्सेस तांबड़माल. 2 ओवर अब तक खत्म हो चुके हैं और 2.1 ओवर अब तक खत्म हो चुका है और 2.1 ओवर में अब तक बनाए तांबड़माल टीम ने बिना किसी विकेट के 30 रन. तीसरा स्पेल लेकर गणपत स्टांस लेने के साथ ही ये गेंद और गेंद को मोड़ा है. यहाँ पर फैन लेग की तरफ गेंद को खेल दिया है. क्या गेंद जा पाएगी सीमा रेखा पार? यकीनन निश्चित तौर पर गेंद गई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए. बढ़िया अच्छा चौका. बढ़िया चौका और
अगली गेंद, इस गेंद को स्टेयर भर दिया, गेंद को मोड़ दिया है सिली मिड ऑन रीजन से लेकर गेंद को मिड विकेट क्षेत्र के रीजन की और गेंद को फीड किया गया, थ्रो किया गया। तब तक बल्लेबाजों ने पूरे किए थे एक ही रन और इस एक रन के साथ स्कोर कार्ड ग्रेजुअली हेल्थीली बढ़ता हुआ 35 रन, 35 runs on the scoreboard of Tambarma. They are endeavor for increasing the scorecard of them. बढ़िया अच्छी पोजीशन में अब तक आ चुके हैं, पोजीशन में आ चुके हैं। दादू और बारकू ने ये बढ़िया काम किया कि आरंभिक बल्लेबाजी करते हुए ओपनिंग साझेदारी दिखलाई है। वह तो जा चुकी है, कम से कम 30 के पार जा चुकी है यह पार्टनरशिप इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में। गणपत के अगली गेंद और ये गेंद सीधा बोल्ड आउट के तहत, कट आउट के तहत ये विकेट मिलता हुआ और गणपत ने ये बेहतरीन ब्रेक थ्रू किया है। जो पनपती होती पार्टनरशिप चल रही थी उसमें से बारको को डिपार्चर किया और कट आउट के रूप में एक अच्छी गेंद डाली, अपर किनारा लेते हुए विकेट कीपर ने पूरा काम किया कट आउट के रूप में, एक विकेट का पतन। तो ये बहुत ही बड़ा झटका मिलता हुआ बारकू के द्वारा तामरमार टीम को। तामरमार रिमेन स्टिल 35 for 1। नए बल्लेबाज जाते हुए गणपत ने आखिरकार सफलता दिलाई और सफलता की जरूरत भी थी क्योंकि स्कोर कार्ड अब ग्रेजुअली और हेल्थीली अच्छी स्थिति में कहा जा सकता है। स्कोर कार्ड पर 35 रन और गणपत अपनी बॉलिंग मार्क पर तैयार। नए बल्लेबाज क्रीज में जाते हुए पोपट विल बी टेकिंग द स्ट्राइक अगेंस्ट ऑफ गणपत नेक्स्ट स्पेल्स ऑफ नेक्स्ट बॉल। गणपत का यह तीसरा स्पेल इस समय फेंका जा रहा है। पोपट अभी अभी आए हैं दादू का साथ देने के लिए और देखना पड़ेगा किस तरह के साथ देते हैं पोपट। ये गेंद बिल्कुल पैर पर डाली हुई गेंद मिस हुआ, स्टंप भी मिस हुआ और पैर भी मिस हुआ, अन्यथा बहुत ही बड़ा झटका मिल सकता था। 1 डाउन में आए हुए पोपट को और इस तरह से बढ़िया यार्क गेंद, जैसे सोचा नए बल्लेबाज आए हैं गणपत ने कोशिश की कि यार्क गेंद को डाला जाए और उसमें थोड़े से नाकाम रहे क्योंकि गेंद लेग स्टंप के बाहर थोड़ी सी गई और गेंद गई लेग साइड पर, जहां पर स्कोर कार्ड में वृद्धि होती हुई बल्लेबाजों ने समय रन पूरे किए थे। 1 रन पूरा किया था और स्कोर कार्ड को जाकर पहुंचा 36 पर। गणपत अभी भी अपना स्पेल डाल रहे हैं। ये गेंद हल्के से चेयर पर बढ़िया अच्छा स्ट्रोक और गेंद को गली क्षेत्र रीजन की ओर मोड़ा है जहां पर एक फील्डर मौजूद है। गेंद को अभी फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक बल्लेबाजों ने पूरे किए थे सिर्फ 1 ही रन और इस 1 रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 37 रन। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर तामळमार 37 धावा। 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर तामळमार 37 धावा। तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर तांबळमाळ 37 धावा, 1 विकेट गंवाऊन चौथा और आखिरी स्पेल डालने के लिए किस गेंदबाज के पास गेंदबाजी दी जाती है, अपने जाने माने एक्सपीरियंस गेंदबाज, उनके पास खासा एहसास है गेंदबाजी का, तो इसके समय दृष्टिकोण से तौसीफ के पास गेंदबाजी का जिम्मा दिया है और तौसीफ अपने गेंदबाजी के माफिक यहाँ पर फील्ड को टाइटिवेट करते हुए तौसीफ अपना चौथा स्पेल लेकर अपने गेंद मार्क पर तैयार और सामना करने के लिए अब दादू अपने स्ट्राइकिंग लेंथ पर, यहाँ पर दो क्रीजों का इस्तेमाल किया जाता है, 2
यहाँ पर क्रीज मौजूद है पिचेस। तौसीफ अपनी चौथी और आखिरी स्पेल लेकर दादू ने फ्लिक किया है, गेंद गई हवा में, फील्डर मौजूद और इसी के साथ यहाँ पर बहुत ही बड़ा झटका मिलता हुआ दादू के रूप में कटा दिए। और डिपार्चर हो चुके हैं। अच्छी शॉट थी लेकिन थोड़ी सी अपीच रही और फील्डर के हाथों में जाकर कट आउट के रूप में गए और जिन्होंने अपना अनुदान दिया 12 गेंदों में 22 रन। बढ़िया यहाँ पर पार्टनरशिप की थी बारकू के साथ और नए बल्लेबाज क्रीज में जाते हुए गुलाब अब नए बल्लेबाज आए हैं। तौसीफ अब अपनी दूसरी गेंद लेकर गुलाब के लिए यह गेंद बढ़िया गेंद स्ट्रोक को खेल दिया है, गेंद गई है। अभी भी रनिंग बिटवीन द विकेट जारी है, थोड़ी सी मिसफील्ड होती हुई और जैसे देखा थोड़ी सी मिसफील्ड हुए तो बल्लेबाजों ने उसका फायदा उठाया और जहां पर 1 रन होना चाहिए तो 2 रन मिले तो स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 39 रन। पोपट ने अपना खाता खोला 2 रन से और अब फिर सामना करेंगे तौसीफ की अगली गेंद का। तौसीफ अपनी तीसरी गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट, पोपट के लिए यह गेंद और पटकी हुई गेंद थोड़ी सी लोअर रखी, फिर भी गेंद को खेल दिया है। यहां पर लॉन्ग ऑन रीजन की तरफ खेलना चाहा था, गेंद को फीड किया गया, थ्रो किया गया, तब तक बल्लेबाजों ने पूरा किया था सिर्फ 1 ही रन और इसी 1 रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 40 रन। अभी भी इस ओवर में 3 गेंदें शेष और इन 3 गेंदों में क्या बड़े लिक हिट आ पाएंगे या नहीं समय बताएगा, लेकिन समय तौसीफ अपने गेंद मार्ग पर तैयार। 3 गेंदें अब तक हो चुकी है और तौसीफ चौथा गेंद लेकर इस समय स्टार्ट लेने के साथ तौसीफ की यह चौथी गेंद और गेंद को मोड़ दिया फाइन लेग सीमा रेखा की तरफ, जहां पर कोई फील्डर मौजूद था भी या नहीं था कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन गेंद गई सीमा रेखा पार 4 रनों की। खाली बॉल है आपके पास। समय मुकाबला जारी है तामड़ वर्सेस गोटी, इन दोनों दिग्गज टीमों के बीच में और सेमीफाइनल के ये मुकाबले, जबकि ये सेमीफाइनल का ये दूसरा मुकाबला बहरहाल इस समय प्रगति पर है और तौसीफ की यह चौथी और आखिरी स्पेल फेंकी जा रही है, जिसमें पिछली गेंद पर 4 रन इकट्ठा किए हैं। पोपट नहीं, गुलाब के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका था और अपना खाता खोला है गुलाब ने और स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 44 रन। अभी भी इस ओवर में 2 गेंदें शेष है। तौसीफ पर स्टांस लेने के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद को स्टेयर कर दिया है, ड्रिवन किया था सीधा लॉन्ग ऑफ रीजन पर, गेंद को फीड किया गया, थ्रो किया गया, मौका है रन आउट का और इस मौके को नहीं गवाया, इंपार्शियल हुए यहाँ पर बल्लेबाज और इस तरह से विकेट नंबर 2 मिलता हुआ गोटी टीम को और इस तरह से रन आउट के तहत यह दूसरा विकेट मिलता हुआ और नए बल्लेबाज क्रीज में जाते हुए गुलाब डिपार्चर्ड और पोपट अभी भी क्रीज में मौजूद, जबकि उनका साथ देने के लिए शिवा। ये गेंद और गेंद को मोड़ दिया है, यहाँ पर लॉन्ग ऑन रीजन की तरफ गेंद को फीड किया
ओ यहाँ पर रन आउट का मौका, और यहाँ पर सिग्नल मिलता हुआ क्या रन आउट, और रन आउट का यहाँ पर मौका भी था। इस तरह से रन आउट के रूप में ये और एक विकेट का पतन। चार षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करताना तांबरमाळ संघाने 46 रन स्कोअर कार्डवर बनविलेले आहेत आणि आव्हान दिलेले आहे ते गोटी संघासमोर 47 रनांचं। सागर इकडे तो चार स्पेल का ये मेगा मैच यहाँ पर जारी है। गोटी वर्सेस तांबरमाल। पहले बल्लेबाजी करते हुए तांबरमाल ने बना है अपने स्कोर कार्ड पर 46 रन, और इसके जवाब में गोटी टीम को इस मैच को जीतने के लिए चाहिए 24 गेंदों में 47 रन। संदीप भांगरे जिथे कुठे असतील त्यांनी मंचावर यायचे। संदीप भांगरे 47 रनों का लक्ष्य दिया गया है गोटी टीम के सामने, और गोटी किस तरह से इस स्कोर को चेस कर पाती है ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल गोटी के पास बहुत ही दिग्गज बल्लेबाजी का मुजाहिरा है और वो प्रदर्शन उस लिहाज से दिखाते भी है। देखना पड़ेगा किस तरह से बल्लेबाजी होती है। स्कोर इतना हाई नहीं है, लेकिन समय जो लोइंग स्कोर रहते हैं वही मुकाबले देखने के काबिल रहते हैं।
किस लिहाज से बल्ले गेंदबाजी करते हैं तामरमार के गेंदबाज इस समय। भास्कर अपना पहला स्पेल लेकर ये गेंद और उस गेंद को मोड़ना चाहता, फैन लेग के स्क्वायर लेग की तरफ गेंद जा रही है। उस और एक फील्डर मौजूद है, अभी गेंद को फील्ड किया रैपिड थ्रो और जैसे थ्रो किया बल्लेबाजों ने पूरे किए थे कपल अप रन और इन कपल अप रन के साथ स्कोर कार्ड इस समय गोटी टीम का 2। गोटी टीम के खाते में 2 रन आ चुके हैं और सुनील ने 2 रन से अपना खाता खोला। कल पेशा सुनील के पैर इस समय बीच मैदान पर ओपनिंग के लिए और भास्कर तामरमार टीम की तरफ से पहली गेंदबाजी करने के लिए अपने बॉलिंग क्रीज पर स्टांस लेने से राइट आर्म और दिल कटिए गेंद गुड लेग स्पॉट पे फेंकी हुई गेंद कट किया गेंद रही है, अपर किनारा लेती हुई गेंद जा रही है। गेंद को अभी फीड किया गया है और जब तक थ्रो किया जाता तब तक बल्लेबाजों ने पूरे किए हैं कपल अप रन। तो 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड अब बढ़ता हुआ 4 रन और हालांकि समय ये 4 रन जो बनाए गए हैं जो सुनील के बल्ले से। भास्कर अपनी तीसरी गेंद लेकर यह गेंद बढ़िया संपर्क क्या पिक किया है गेंद को, गेंद गई लॉक ऑन सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। तसेच ज्यांनी या चषकाला मेहनत सिरीज पारितोषिक दिले असे आमचे मित्र मार्गदर्शक नंदुभाई जाधव यांच्या मैदानावर आगमन, त्यांना विनंती असेल मंचावर यायचे स्थानग्रस्त व्हायचे। ज्यांनी कमिटीला टी शर्ट स्पॉन्सर केले ते विक्रमराजे भांगे यांच्या मैदानावर आगमन, त्यांना विनंती असेल मंचावर यायचंय। अगली गेंद उसको कट कर दिया है, गेंद गई है यहाँ पर सीधा फील्डर के हाथ में, विकेट के रूप में मिलेगा यह पहला झटका सुनील द्वारा। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और समय नजर लग गई और इस नजर में सुनील हुए है डिपार्चर्ड। तो 14 रन किए अपने बल्लेबाजी से, अच्छा यहाँ पर योगदान दिया सुनील ने और भास्कर ने यह अच्छी सफलता दिलाई अपनी टीम के लिए। पहला विकेट मिला, स्कोर है इस समय 14 रन और नए बल्लेबाज क्रीज की तरफ जाते हुए एंडी अब जाएंगे क्रीज में। किस लिहाज से बल्लेबाजी करते हुए एंडी, समय गेंदबाजी तो बहुत ही आला रही है लेकिन देखना पड़ेगा बल्लेबाजी से क्या योगदान देते हैं। भास्कर की अगली गेंद व्हाट अ शॉट और कल्पेश ने इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के पार पहुंचाया है 4 रनों के लिए। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर घोटी 1 बाद 18 धावा। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर एसआर के घोटी 18 धावा 1 विकेट बाद 18 धावा। लक्ष्य है इस समय 47 रनों का और जो डीजे ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर मौजूद साई गवारी, अविनाश दुर्गुडे। पहला स्पेल खत्म हो चुका और पहले स्पेल में 18 रन।
पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या एसआर के घोटी 18 रन। दूसरा स्पेल लेकर सुरेश इस समय अपने गेंद मार्ग पर और सामना करने के लिए अब एंडी सामना करेंगे पहली बार। सुरेश की गेंद का लक्ष्य है इस समय 47 रनों का और घोटी टीम बहुत ही अच्छे कंडीशन में आ चुकी है अब तक। अगली गेंद और ये गेंद जिसको मोड़ दिया फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बढ़िया पिकअप किया, जैसे देखा गेंद थोड़ी सी शॉट डाली गई थी, बैक फुट पे गए और गेंद को मोड़ दिया स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ एसआर के घोटी का 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यह गेंद रिवर्स खेली हुई शॉट नो मैच लैंड में जाकर पिच हुई है और जब तक फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते थ्रो करते तब तक बल्लेबाज पूरे कर चुके थे 2 रन और इन 2 रनों के साथ एसआर के घोटी का स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हालांकि जो पहला विकेट मिला है सुनील का 14 रनों की बहुत अच्छी पारी खेली और जल्दी अपना विकेट गवाकर पेविलियन में, तो समय एंडी सामना करेंगे अब सुरेश की अगली गेंद का। सुरेश स्टांस लेने के साथ स्लोअर गेंद और पूरी तरह से बिट किया था, यहाँ पर स्लिप को भी बिट किया, विकेट कीपर को भी बिट किया और गेंद आई थी यहाँ पर स्लिप के बगल में, थर्ड मैन की तरफ जाना चाहती थी, गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक बल्लेबाजों ने पूरा किया था 1 रन और इस 1 रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ एसआर के घोटी का 25 रन। दूसरा स्पेल सुरेश द्वारा इस समय प्रगति पर और सामना करने के लिए अब कल्पेश आए हैं। सुरेश अपनी गेंद मार्ग पर इस समय राइट आर्म ओवर द विकेट, कल्पेश को स्लोअर गेंद लोअर गेंद हवा में गई और मौका है, मौका नहीं गवाया, कटआउट के रूप में कल्पेश को फंसाया और इस तरह से कटआउट के रूप में जाना पड़ेगा पेविलियन कल्पेश को। और इस तरह से पिछली गेंद पर एक स्लो गेंद डालकर फंसाया है और विकेट चटकाया है, विकेट नंबर 2 और इस तरह से नए बल्लेबाज क्रीज में गए हैं। सुरेश का यह दूसरा स्पेल फेंका जा रहा है, 4 गेंदें अब तक फेंक चुके हैं सुरेश और अभी भी 2 गेंदें इस ओवर में फेंकी जाएंगी। लक्ष्य है 47 रनों का, जिसमें से 25 रन अब तक कलेक्ट कर पाई है एसआर के घोटी टीम। ये गेंद और रन आउट का मौका हो सकता था, लेकिन थोड़ी सी मिसफील्ड और मिसफील्ड के चलते यहाँ पर बल्लेबाजों ने पूरा किया है 1 रन और इसे 1 रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ एसआर के घोटी का 26 रन स्कोर कार्ड पर घोटी के। और अभी भी एक गेंद अभी भी इस ओवर में फेंकी जानी बाकी, 5 गेंदें अब तक फेंकी जा चुकी है सुरेश की गेंदबाजी में, जब एक गेंद शेष है। तौसीफ और या इस समय एंडी बीच मैदान पर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से 47 का जो लक्ष्य रखा है उस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इस गेंद को रिवर्स मारते हुए कामयाब हुए हैं, गेंद को मोड़ दिया फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए।
दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होती ती घोटी एसआर के संघाची 30 धावा। अभी भी इसके आगे 12 गेंदों में घोटी एसआर की टीम को जीतने के लिए चाहिए 17 रन। शिल्लक उर्वरित दोन षटकांमध्ये एसआर के घोटी संघाला जिंकण्यासाठी 17 धावांची गरज। बारा चेंडू 17 धावा हे पुढील लक्ष्य असेल, परंतु समय यहाँ पर लक्ष्य है 47 रनों का, जिसमें से 2 ओवर्स में अब तक बनाए हैं 30 रन। नए गेंदबाज बॉलिंग क्रीज में आते हुए दादू, अच्छी ओपनिंग बल्लेबाजी की थी दादू ने। अब देखना है अपने गेंदबाजी से कैसा इंप्रेशन डालते हैं अपनी गेंदबाजी से। ये इस समय मुकाबला जारी है सांबरमाल वर्सेस घोटी एसआर के टीम, इन दोनों दिग्गज टीमों के बीच में सेमीफाइनल के ये मुकाबले, जिसमें से अब 17 रनों की दूरी घोटी टीम को जीतने के लिए और घोटी टीम इस टोटल तक पहुंच सकती है, ऐसा सूचित हो रहा है, क्योंकि स्कोर कार्ड बहुत ही हेल्दीली है इस समय। तीसरे स्पेलर दादू into batsman couldn't control himself and a ball cut, the opportunity was declared cut out, no any damage done, so score remains still 31। इस तरह से 31 रन हुआ है स्कोर कार्ड, जबकि पिछला रन दौड़ा गया। अगर पर किनारा थोड़ी सी लेती गेंद और कलट की जाती तो मौका था यहाँ पर विकेट लेने का, लेकिन थोड़ी सी मिसफील्ड होती हुई विकेट कीपर द्वारा। समय चलिएगा आगे 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 आने वाली गेंद की तरफ देखते हैं। दादू स्टांस लेने के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट, यह गेंद बिल्कुल चाइनामैन डिलीवरी और उस गेंद पर पूरी तरह से बीट है बल्लेबाज पूरी तरह से बीट, बिल्कुल स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं। मिडल स्टंप पर गेंद थी और गेंद वाउंड होती हुई गेंद जमीन पर जाकर टकराई। इस तरह से डॉट गेंद और उस गेंद पर कोई रन नहीं मिला। रन अभी भी 31 रन। तीसरा स्पेल फेंका जा रहा है, आगे आकर खेली हुई, ये यहाँ पर बहुत ही है मॉन्स्टर लाइक शॉट, जाएगा सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। और स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ पिछले बड़े हिट के साथ 37 रन। अब यकीनन यहाँ पर घोटी टीम अपनी जीत की तरफ मुड़ती हुई। 3 गेंदें अभी भी इस ओवर में फेंकी जानी बाकी। दादू इस समय फेंक रहे चौथा गेंद, ये गेंद और बढ़िया गेंदबाजी वापसी करते हुए दादू गेंद बल्लेबाज को पूरी तरह से बिट किया और गेंद गई मिडल और लेग स्टंप के बीच में से विकेट कीपर के दस्तान में बिना किसी रन के। जरूरतें रनों की जो रफ्तार है उसको रोकने की उसी में कामयाब होने की कोशिश की जा रही है दादू द्वारा। परेशानी का सबब यह है कि अभी भी बहुत सारी विकेट बाकी हैं और बहुत ही गहरी बल्लेबाजी है घोटी टीम के पास, इसमें कोई संदेह नहीं। समय एंडी और तुशी तौसिफ के पैर इस समय बीच मैदान पर। दादू इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, 4 गेंदें अब तक फेंकी जा चुकी है और इस ओवर में अभी भी 2 गेंदें शेष और स्कोर कार्ड इस समय 37 रन। अभी भी 10 रनों की दरकार 8 गेंदों में, 8 गेंदें और 10 रनों की दरकार जीतने के लिए घोटी एसआर की टीम को
तीसरा स्पेल फेंका जा रहा है, दादूदर रहा, दादुर की ये गेंद आगे आकर खेली, शॉट, वाले शॉट, गेंद जाएगी मिडल और मिड ऑफ के बीच में से सीमा रेखा बाहर, 6 रनों के। तो पिछले बड़े हिट के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 43, अभी 4 रन दूर अपनी जीत से, और चहलकदमी करनी चाहिए, आगे आकर खेलना चाहे, ऑफ स्टंप के बाहर ज्यादा गए और इस लिहाज से गेंद यहाँ पर डट गई। तो इस तरह से 3 षटकांच्या समाप्ती नंतर गोटी एसआर के 43 धावा, अजूनही 6 बॉलांमध्ये गोटी संघाला जिंकण्यासाठी 4 रनांची गरज। तो इस तरह से एक ओवर में चाहिए जीतने के लिए एसआर के टीम को। तो इस तरह से आखिरी स्पेल अभी भी इस इनिंग में बाकी, गोटी बिल्कुल जीत की कगार पर आकर खड़ी हुई है और 4 रन शॉट अपनी जीत से, सिर्फ एक ही स्पेल बाकी है इस इनिंग में। आदिवासी लायन फाउंडेशन अड़सरे बुद्ध यहाँ पर प्रेजेंटेड किया गया है। इस पहले ईयर में महानायक चषक, तो हमारे न्यू जनरेशन वाले ये जो खिलाड़ी है, तो वो लायन के तहत यहाँ पर क्रिकेट जो खेल है इसकी सीमाओं को लांघते हुए आगे जा चुके हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो 2020 का खेल रहता है वो बहुत ही थोड़ा सा नॉर्मल ही रहता है, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा जर्क और कंडीशन दिखानी पड़ती है। इसके लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही फास्ट है ये खेल, और यहाँ पर एग्रेशन करते हुए दिन ब दिन ये लायन बढ़ते हुए जाते रहते हैं। और इस तरह से सुरेश आएंगे अपनी चौथी गेंदबाजी लेकर। ये गेंद और गेंद अपर किनारा लेती हुई गेंद गई है, हवा में गेंद है और इस तरह से ड्रॉप कैच हुआ और गेंद गई। 2 रनों का इजाफा पिछली गेंद पर, और इन 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 45 रन। अभी भी 2 रनों की जरूरत जीतने के लिए गोटी एसआर की टीम को। अगली गेंद आगे आकर खेलना चाहा था, पूरी तरह से बिट, और यहां पर विकेट कीपर भी बिट हुए हैं। गेंद को स्लिप ने कलेक्ट कर लिया गया और पहुंचाया गेंदबाज के पास। समय कोई रन नहीं मिला, स्कोर रिमेन स्टिल 45 रन ऑन द स्कोर बोर्ड ऑफ एसआर के घोटी। अगली गेंद बढ़िया स्ट्रोक, और इसी के साथ मिल जाएगा यहां पर चौका, और इसी के साथ मिल जाएगी एसआर के गोटी को जीत। कॅप्टन आणि तांबडमाळचा कॅप्टन